Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. In this lecture we will study salts and pH value. Now start the lecture and understand. In the previous lecture we have studied acids and bases. I would like to teach you again so that you could understand salts properly, right? So we have studied acids and bases in the previous lecture in depth, right? And we would revise again in short, right? So according to modern concept or according to modern theories and according to Arrhenius, right, acids are those substances which when dissolves in water provides H plus ion, right? And bases are those substances which when dissolves in water provides OH negative ion. According to Bronsted and Lowry, right? So according to Bronsted and Lowry, right, acids are those molecules or ions which have tendency to provide proton. तो ये प्रोटॉन को क्या करते हैं, प्रदान करते हैं, right? To provide proton, while bases are those molecules or ions which have tendency to accept proton, right? So according to Bronsted and Lowry, acids are those elements which provide protons to another substance, and according to Bronsted and Lowry, bases are those molecules or ions which accept protons, right? According to Lewis, in acid-base reaction, acids are those substances which accepted lone pair of electron, right? And in a acid-base reaction, according to Lewis, bases are those substances which provide a lone pair of electron, right? So in this way, these are the definitions of acids and these are the definitions of bases. Example of acids is HCl and example of bases is NaOH. Right? In the previous lecture we have also studied that when acids react with bases, then this reaction is known as neutralizing reaction, and in this reaction salt and water is obtained, right? तो यहीं से जो है हमें किसकी डेफिनेशन मिलती है, सॉल्ट की डेफिनेशन मिलती है, when acid, hydrochloric acid and base NaOH reacts with each other, then what will happen, right? Then NaCl, right? NaCl plus का H2O, right? So जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उसमें ही सॉल्ट ऑब्टेन होता है, साथ ही साथ वाटर क्या होता है, ऑब्टेन होता है. सो यहीं से वी विल गेट द डेफिनेशन ऑफ आयन, राइट? जो आयन होते हैं, दिस इज आयोनिक कंपाउंड, right? The ionic compound formed in the neutralization reaction is known as a salt, right? So if 3 marker question asked in the examination, then we can write this definition, right? The ionic compound formed in the neutralization reaction of acids and base is known as salt, right? So when acid and base react each other, salt and water are ऑब्टेन्ड. जैसा कि मैंने बताया कि जब HCl और NaOH की रिएक्शन होगी तो यहाँ पर क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा एंड वाटर जो है प्राप्त होगा. जो pH वैल्यू होती है सॉल्ट की जनरली वो कितनी होती है, 7 होती है. फॉर एन एग्जांपल साल्ट, NaCl, कॉस्टिक सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट्स, राइट? नाउ वी विल स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉल्ट. Right, here this topic we need to prepare this topic for 5 marker question, because 5 marker question may be asked as define salt and what are the characteristics of salts, right? So we have seen the definition of salts, now we will see the characteristics of salt. The first is salts are usually ionic solid materials. तो salts जो होते हैं वो solid क्या होते हैं, ionic
सॉलिड मटेरियल होते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो इनमें क्या होता है, आयोनिक होते हैं, राइट। और आयोनिक होते हैं तो इनके मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फोर्स होता है। इसी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ही हाई होता है, राइट। व्हेन वी हैव स्टडीड इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड में हमने ये बहुत अच्छे से समझा था, राइट, कि चूंकि ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन से जो है बॉन्ड होते हैं, इसीलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है। सो दीज आर द टू एग्जांपल्स। फर्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स, salts are usually ionic solid materials. Second, इनके जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं और मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो क्या होते हैं, हाई होते हैं। दीज आर सॉल्यूबल इन वाटर, राइट। और चूंकि जब इनको वाटर में जो है दीज आर सॉल्यूबल इन वाटर व्हेन सॉल्ट्स आर डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो ये आयोनिक जो कंपाउंड हैं या आयोनिक एटम्स में क्या होते हैं, टूट जाते हैं या आयंस में टूट जाते हैं। देयरफॉर सॉल्ट्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए इनका प्रयोग इलेक्ट्रोलाइट्स के रूप में किया जाता है, राइट। एंड सॉल्ट्स आर आयोनिक कंपाउंड, राइट, एंड ईच सॉल्ट हैज अ कैशन एंड एनायन। फॉर एन एग्जांपल, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं जैसे NaCl, राइट, तो यहाँ पर Na क्या हो जाएगा, कैशन हो जाएगा, एंड Cl क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा। Also we can see the example of ammonium chloride NH4Cl, इसमें NH4 कैशन हो जाएगा और Cl नेगेटिव क्या हो जाएगा, एनायन हो जाएगा, राइट। नाउ वी विल सी द नेचर एंड pH वैल्यू ऑफ साल्ट सॉल्यूशन, राइट। तो इसको हम बहुत ही जो है डिटेल में पढ़ेंगे और इसी के आधार पर फिर जो है आगे हम यहाँ पर जो है टाइप्स ऑफ सॉल्ट को भी जो है बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ेंगे, राइट। तो देखिए, नेचर एंड pH वैल्यू ऑफ द सॉल्ट सॉल्यूशन, या ये 5 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज द नेचर ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस, या व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशंस। तो इसको हम यहाँ पर बहुत ही डिटेल में जो है पढ़ते हैं, राइट। अभी मैंने आपको बताया है कि salts आर यूजुअली फॉर्म्ड बाय अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, राइट। तो जब एसिड्स और बेसिस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, जब एसिड्स और बेसिस की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है, तो इसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से ही सॉल्ट क्या होते हैं, फॉर्म होते हैं, राइट। सो व्हेन acids and salts react each other, when acids and salts react each other, so through this neutralization reaction water and salt is obtained। और जनरली इनका pH वैल्यू कितनी होता है, 7 होता है। जब सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग सॉल्ट्स इन वाटर, तो ये जो है इसका नेचर कैसा हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी होता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, राइट। तो जब इस सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो इसका नेचर एसिडिक, बेसिक और कैसा हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए हमने जब व्हेन वी स्टडीड एसिड्स एंड बेसिस, सो वी हैव स्टडीड दैट कि कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, कुछ वीक एसिड्स होते हैं, कुछ वीक बेसिस होते हैं, कुछ स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, बेसिस होते हैं। अब जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है उस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक क्या है, बेस है, तो जो सॉल्ट होगा वो भी क्या होगा, एसिडिक इन नेचर होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जब सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा तो उसका नेचर एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि उसमें H+ आयंस की संख्या ज़्यादा है या OH नेगेटिव आयंस की संख्या ज़्यादा है। व्हेन सॉल्ट इज डिसॉल्व इन वाटर, राइट, और जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, इफ देयर आर मोर फ्री H+ आयंस, यदि सॉल्यूशन में H+ आयंस ज़्यादा हैं तो जो नेचर होगा सॉल्ट का वो कैसा होगा, एसिडिक होगा, क्योंकि H+ आयन ज़्यादा होंगी तो pH वैल्यू 7 से कम होगी, अर्थात उस सॉल्यूशन
का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा। और यदि सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व किया जाए और उसमें OH आयंस की संख्या ज़्यादा है तो सॉल्यूशन का नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, क्योंकि OH आयंस की संख्या ज़्यादा होगी तो pH वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 7 होगी, और जो सॉल्यूशन है वो कैसा होगा, बेसिक होगा। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम देखें, जब सोडियम क्लोराइड को वाटर में क्या किया जाता है, डिसॉल्व किया जाता है, व्हेन सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर सो इट प्रोवाइड्स pH वैल्यू 7, अर्थात इसका नेचर कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। व्हेन अमोनियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर इट प्रोवाइड्स द pH वैल्यू 6, अर्थात इसका नेचर कैसा होता है, एसिडिक होता है। व्हेन सोडियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर तो इसका pH वैल्यू 9 होता है, अर्थात इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। और इसी के आधार पर वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ सॉल्ट। ये भी 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, डिफाइन सॉल्ट एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉल्ट, राइट। और मैं ये कहूँ ये 11 मार्कर में भी पूछा जा सकता है, क्योंकि हमको डबल सॉल्ट के बारे में पढ़ना, मिक्स्ड सॉल्ट के बारे में पढ़ना, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट के बारे में भी पढ़ना है, राइट। सो नाउ वी विल स्टडी द टाइप्स ऑफ सॉल्ट, राइट। सो डेफिनेशन जो है हम पढ़ चुके हैं, नाउ वी विल स्टडी टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो टाइप्स ऑफ सॉल्ट में सबसे पहला क्या हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा, न्यूट्रल सॉल्ट हो जाएगा। देखिए इतना हमें पता है कि साल्ट और सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, राइट। तो न्यूट्रल सॉल्ट कब प्राप्त होगा, देखिए यदि स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस से होती है, राइट, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन होती है तो उससे न्यूट्रल जो साल्ट है वो ऑब्टेन होगा, जिसकी pH वैल्यू कितनी होगी, 7 होगी। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड हो जाएगा, राइट, जिसकी pH वैल्यू 7 होती है। बट इफ देयर इज स्ट्रॉन्ग एसिड, यदि एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है, और बेस कैसा है, वीक है, राइट, यदि स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है तो न्यूट्रल सॉल्ट होगा। बट इफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के बीच में रिएक्शन होती है तो उससे उसके सॉल्यूशन में H+ आयंस की संख्या ज़्यादा होगी और जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट्स विद वीक बेस तो वी विल गेट एसिडिक सॉल्ट, जिसकी pH वैल्यू लेस देन क्या होगी, 7 होगी। फॉर एन एग्जांपल अमोनियम क्लोराइड, जिसकी pH वैल्यू 6 होती है। थर्ड इज बेसिक सॉल्ट, when there is a weak acid but strong base, right। तो जब strong base हो तो क्या होगा, basic salt होगा, very easy। if strong acid strong base neutral salt, strong acid तो acidic salt, strong base तो क्या हो जाएगा, basic salt हो जाएगा, जिसकी pH वैल्यू क्या होगी, greater than 7 होगी। for an example सोडियम कार्बोनेट, जिसकी pH वैल्यू कितनी होती है, 9 होती है। नेक्स्ट इज मिक्स्ड सॉइल, ये 3 मार्कर में बिल्कुल पूछा जा सकता है या फिर इसका एग्जाम्पल भी पूछा जा सकता है, राइट। तो मिक्स्ड सॉल्ट क्या होता है, सच अ सॉल्ट इन विच 2 और मोर बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स आर प्रेजेंट आर नोन एज मिक्स्ड सॉल्ट, राइट। तो एक ऐसा सॉल्ट जिसमें 2 या 2 से अधिक बेसिक या एसिडिक क्या हो, रेडिकल्स मौजूद हों, राइट। तो सच अ सॉल्ट इन विच 2 और मोर बेसिक और एसिडिक रेडिकल्स आर प्रेजेंट इज नोन एज मिक्स्ड सॉल्ट। फॉर एन एग्जांपल ब्लीचिंग पाउडर, सो ब्लीचिंग पाउडर इज द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड सॉल्ट। और ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, CaOCl and Cl, जिसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, CaOCl2, तो CaOCl2 भी लिख सकते हैं और CaOCl भी लिख सकते हैं। देन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आइदर 3 मार्कर में जो एग्जाम्पल हैं वो पूछे जा सकते हैं। एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, तो एट फर्स्ट वी विल सी द डेफिनेशन, right, complex salt, see salt in which ions or neutral molecules form a subcovalent bond, right, और जिसको क्या कहा जाता है,
कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ये सब की जगह पे क्या आएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, राइट. सो सॉल्ट इन विच आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद अ केशन आर कॉल्ड हाइब्रिड और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. तो ये आपको 3 मार्कर के लिए डेफिनेशन याद रखनी है, राइट. सी salt in which ions or molecules form a coordinate covalent bond with a cation are known as complex salt. तो या तो आप ये डेफिनेशन याद रखें, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि when these are dissolved in water, जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो इनसे क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं. साथ ही साथ इन सॉल्यूशन द कॉम्प्लेक्स आयन डू नॉट dissociate into their constituent and they have their own separate existence. तो जो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होते हैं, उनका सेपरेट एग्जिस्टेंस भी होता है. तो ये डेफिनेशन याद रखें, साल्ट इन विच आयन और न्यूट्रल मॉलिक्यूल फॉर्म अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड विद अ केशन आर नोन एज हाइब्रिड और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. और जब इनको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये कॉम्प्लेक्स आयन प्रोवाइड कराते हैं, राइट. और इनके जो कॉम्प्लेक्स आयन होते हैं ये पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होते हैं, उनकी सेपरेट क्या होता है, एग्जिस्टेंस होता है. फॉर एन एग्जांपल क्या हो जाएगा यहाँ पर, पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6. तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड, देन पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, तो ये हो जाएगा पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, राइट. तो K2Hg, ये क्या है, यहाँ पर I है, ध्यान रखें ये कैपिटल I है, राइट. तो K2HgI एंड क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा. तो पोटेशियम फेरोसाइनाइड इज एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. देन पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, राइट. नाउ वी विल स्टडी डबल सॉल्ट. See, what is the definition? See, the salt obtained by the evaporation of an aqueous solution of two simple salt is called a double salt, right? तो जब two simple salts के, right, जब 2 simple salt हों और उनके एवापोरेशन जो एक्वेस जो सॉल्यूशन होता है, एक्वेस सॉल्यूशन के एवापोरेशन से जो साल्ट प्राप्त होता है उसको क्या कहते हैं, डबल साल्ट कहते हैं, राइट. अगेन the salt obtained by the evaporation of an aqueous solution of 2 simple salt is called a double salt. ये हम कह सकते हैं कि a salt is a mixture of 2 salt, a salt which is mixture of 2 salt which on dissolution in water gives 2 types of metal ions. तो एक ऐसा salt जो कि 2 सॉल्ट का मिक्सचर होता है और जब उसको वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो वो 2 मेटल आयंस में क्या होता है, टूट जाता है. सो अ डबल सॉल्ट इज अ मिक्सचर ऑफ 2 सॉल्ट विच ऑन डिसॉल्यूशन इन वाटर गिव्स 2 टाइप ऑफ मेटल आयंस, राइट. तो जो वाटर में डिसॉल्व होने पर 2 प्रकार के आयंस को प्रोवाइड करा है, उसको ही जो 2 प्रकार के मेटल आयंस को मेटल आयंस में टूट जाए उसको हम क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट कहते हैं, राइट. डबल सॉल्ट एग्जिस्ट ओनली इन सॉलिड स्टेट, तो ये केवल और केवल सॉलिड स्टेट में ही जो है एग्जिस्ट करता है एंड हैव अ फिक्स्ड रेशियो ऑफ सिंपल सॉल्ट्स. एग्जांपल के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो क्या हो जाएगा, पोटास एलम हो जाएगा एंड एलम हो जाएगा. तो पोटास एलम को जो है एग्जाम्पल ये किसी न किसी एक जो है एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, राइट. तो यहाँ पर 2 एग्जाम्पल आप जरूर याद रखें, राइट. जो है एग्जाम्पल्स ऑफ डबल सॉल्ट्स ये 3 मार्कर में जो है पूछा जा सकता है. तो पहला क्या हो जाएगा, पोटास एलम या एलम, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K2SO4.Al2, राइट, एल्यूमिनियम 2, देन SO4 3.24H2O. So this is the definition of chemical formula of potash alum. Then Mohr salt. So potash alum and Mohr salt are the examples of double salts. Chemical formula of Mohr salt is FeSO4 NH42 SO4.6H2O. So ये जो है potash alum और Mohr salt, these are the examples of double salt. Right? Now we will study some important salts and their characteristics and their uses. Right? तो यहाँ से भी जो है
हो सकता है कि किसी एक जो सॉल्ट है उससे 5 नंबर का या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या हो सकता है ये 11 मार्कर क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। डिफाइन सॉल्ट एंड आल्सो डिस्क्राइब सम इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स एंड देयर यूजेस। तो जो इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके जो यूजेस हैं हम उनको वन बाय वन पढ़ेंगे, राइट। सिंपल सॉल्ट या जिसको क्या कहा जाता है, कॉमन सॉल्ट भी बोला जाता है, राइट, या जिसको NaCl कहते हैं। तो देखिए द केमिकल नेम ऑफ सिंपल सॉल्ट और द केमिकल नेम ऑफ सिंपल सॉल्ट एंड कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है केमिकल नेम होता है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, NaCl होता है। और जो NaCl है वो किस किस की, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब, राइट, व्हेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड देन NaCl और क्या बनता है, वाटर बनता है, राइट। तो यहाँ पर NaCl जो है HCl हाइड्रोक्लोरिक acid is a strong acid and this is strong base, therefore जो है ये दोनों एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है एंड एक स्ट्रॉन्ग क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। therefore जो सिंपल सॉल्ट होता है, राइट, वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, राइट। आल्सो इट इज ऑब्टेन्ड नेचुरली बाय द एवापोरेशन ऑफ सी वाटर। जो सी वाटर होता है उसके एवापोरेशन से भी जो है सिंपल ये जो कॉमन सॉल्ट है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है, राइट। तो जो कॉमन सॉल्ट होता है उसका केमिकल नेम हो जाएगा सोडियम क्लोराइड, फॉर्मूला हो जाएगा NaCl, राइट। ये HCl और NaOH की रिएक्शन से ऑब्टेन होता है और नेचुरली ये सी वाटर के एवापोरेशन से भी जो है ऑब्टेन किया जा सकता है, राइट। इट इज यूज्ड एज अ एडिबल सॉल्ट, राइट। तो फूड स्टफ्स में इसका प्रयोग किया जाता है और फूड प्रिजर्वेशन में भी जो है कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड। नेक्स्ट इज कॉस्टिक सोडा, राइट। द केमिकल नेम ऑफ कॉस्टिक सोडा इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड द केमिकल फॉर्मूला इज NaOH, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो the chemical name of caustic soda is sodium hydroxide and its chemical formula is NaOH। अब ये कैसे प्राप्त किया जाता है, ये एक बहुत ही जो कोल एल्काली रिएक्शन है, ये हो सकता है 3 मार्कर में पूछा जाए, राइट। सो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन aqueous solution of sodium chloride it dissociates to form सोडियम हाइड्रोक्साइड और इसको ही कोल एल्काली रिएक्शन कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2NaCl हो जाएगा, राइट। तो जब एक्वेटिक सॉल्यूशन ऑफ किसका, सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड का ये एक्वेटिक सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट, प्लस का 2H2। अब जैसे ही, राइट, इसको करते हैं तो ये 2NaOH और Cl2 गैस और H2 गैस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमको क्या प्राप्त होता है, NaOH प्राप्त होता है, राइट। सो ऑन पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू एन aqueous solution of sodium chloride it dissolves or it disassociate to form sodium hydroxide और इस प्रक्रिया को ही कोल एल्काली रिएक्शन कहा जाता है एंड थ्रू कोल एल्काली रिएक्शन NaOH और सोडियम हाइड्रोक्साइड इज ऑब्टेन्ड, राइट। तो ये NaCl हो जाएगा, इसका 2H2O हो जाएगा, देन वी विल प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी, तो 2NaOH हो जाएगा, क्लोरीन गैस जो है रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, राइट। अब जो कॉस्टिक सोडा है, कॉस्टिक सोडा इज यूज्ड इन सॉप्स, राइट। तो जो सॉप्स होती हैं उनमें, साथ ही साथ प्यूरिफिकेशन ऑफ हाउसेस एंड फैक्ट्रीज। तो फैक्ट्रीज जो है जैसे हमारी टेबल डेस्क हो जाएगी, राइट, या फ्लोर हो जाएगा। तो हाउसेस और जो फैक्ट्रीज हैं उनके फ्लोर को क्लीन करने में या प्यूरिफिकेशन में और सॉप की मैन्युफैक्चरिंग में जो है कॉस्टिक सोडा का यूज किया जाता है। नाउ ब्लीचिंग पाउडर, this is also important. See, the chemical name of bleaching powder is calcium hypochlorite, right? So the chemical name of bleaching powder is calcium hypochlorite and its formula is, chemical name is CaOCl2, right?
जो ब्लीचिंग पाउडर है, अब ये कैसे बनता है, देखिए जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की क्लोरीन गैस के साथ में रिएक्शन होता है तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड प्राप्त होता है और साथ ही साथ जल प्राप्त होता है, राइट। तो ये जो केमिकल रिएक्शन है ना, ये अगर आप याद रखेंगे तो आपको आसानी से पूरा याद हो जाएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर, राइट, ब्लीचिंग पाउडर इज फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई, राइट, लेग्ड लाइम हो जाएगा CaOH2। तो CaOH2 पर जब क्लोरीन गैस की एक्शन होती है तो CaOCl2 या फिर कैल्शियम हाइपोक्लोराइड जो है ऑब्टेन होता है, साथ ही साथ वाटर का मॉलिक्यूल भी फॉर्म होता है, राइट। अब जो ब्लीचिंग पाउडर इज इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस्ड एट द हेसेन-क्लेवर प्लांट। तो हेसेन-क्लेवर प्लांट में थ्रू हेसेन-क्लेवर मेथड ब्लीचिंग पाउडर इज ऑब्टेन। जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका बड़े पैमाने पर यूज किया जाता है, किसमें, सबसे पहला तो जो केमिकल इंडस्ट्रीज है, इन केमिकल इंडस्ट्री ब्लीचिंग पाउडर इज यूज्ड। फिर एज अ डिसइंफेक्टेंट के रूप में, राइट, डिसइंफेक्टेंट के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। और डिसइंफेक्टेंट के रूप में जो ड्रिंकिंग वाटर है उसको बैक्टीरिया से फ्री बनाने में ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। सो ब्लीचिंग पाउडर इज एडेड टू ड्रिंकिंग वाटर टू मेक द वाटर फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया और अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनसे। फिर जो ब्लीचिंग पाउडर होता है उसका प्रयोग जो है कॉटन और लिनेन, राइट, ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड लिनेन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसमें किया जाता है। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में जो क्लॉथ्स होते हैं उनको कलरफुल बनाने के लिए जैसे हमने कहा कि ये व्हाइट शर्ट है, अगर इसको रेड कलर से करना है, अगर आप नॉर्मली कलर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। लेकिन ब्लीचिंग एजेंट के साथ में यदि क्लॉथ्स को क्या किया जाता है, डाई किया जाता है, तो उनका कलर जो है वॉश करने पर निकलता नहीं है। तो ब्लीचिंग ऑफ कॉटन एंड लिनेन, जो कॉटन और लिनेन के ब्लीचिंग करने में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही साथ ब्लीचिंग ऑफ वुड मैरो, राइट, इन द पेपर फैक्ट्री हो जाएगा। एंड ब्लीचिंग ऑफ क्लीन क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, तो लॉन्ड्री में जो क्लीन क्लॉथ्स होते हैं उनकी ब्लीचिंग में भी जो है ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट इज बेकिंग सोडा, राइट। तो बेकिंग सोडा का जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाएगा, राइट। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड इट्स केमिकल फॉर्मूला इज NaHCO3। तो NaHCO3 द केमिकल नेम ऑफ इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रासायनिक फॉर्मूला NaHCO3, ये बेकिंग सोडा का ही क्या है, रासायनिक नाम है, राइट। और इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो बेकिंग सोडा इज आल्सो नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट। इट्स केमिकल नेम इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3, राइट। और जो बेकिंग सोडा है ये वीक नॉन कोरेसिव क्या होता है, सॉल्ट होता है। बेकिंग सोडा का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, इट इज यूज्ड इन कुकिंग फूड क्विकली। क्या होता है, जैसे पल्सेस होता है, आपने देखा होगा कि जो पल्स होती है वो नॉर्मली अगर आप उसको कुक करते हैं, राइट, जैसे अगर हम देखें इफ वी डोंट हैव प्रेशर कुकर, तो विदाउट प्रेशर कुकर पल्सेस को कुक करना बहुत ही मुश्किल होता है, राइट। तो कभी कभी जो फूड आइटम्स है उनको क्विकली कुक करने के लिए जो है बेकिंग सोडा इज यूज्ड। तो बेकिंग सोडा इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड क्विकली। इसके साथ ही टार्टरिक एसिड एंड बेकिंग सोडा आर यूज्ड टू मेक बेकिंग पाउडर। जो बेकिंग पाउडर होता है उसको बनाने में बेकिंग सोडा का इस्तेमाल किया जाता है, राइट। इसका प्रयोग एसिडिटी को दूर करने में भी किया जाता है। आल्सो यूज्ड इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, right. Next is washing soda, right. The chemical name of washing soda is sodium carbonate, right. तो washing soda का chemical name क्या हो जाएगा, sodium carbonate हो जाएगा and the chemical formula is NO2CO3. So washing soda, right, the chemical name of washing soda is
सोडियम कार्बोनेट एंड फार्मूला इज Na2CO3, राइट। ये एक बेसिक साल्ट होता है या इसका नेचर जो होता है वो कैसा होता है, बेसिक होता है। वाशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय रिक्रिस्टलाइजेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट के रिक्रिस्टलाइजेशन से ही वाशिंग सोडा जो है प्राप्त होता है, राइट। अब सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हमने अभी देखा था 2NaHCO3, तो 2NaHCO3, राइट। इसको जब रिएक्शन होगी तो Na2CO3 प्लस का H2O और क्या हो जाएगा CO2, तो 2NaHCO3 सोडियम कार्बोनेट से Na2CO3 बनेगा और Na2CO3 में जब जो क्रिस्टलाइन होगा तो Na2CO3.10H2O, ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट जो है सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला हो जाएगा Na2CO3। तो यहां पर ध्यान रखना कि जो जल योजित लवण होता है, राइट, तो Na2CO3.10H2O इसको ही क्या कहा जाता है, वाशिंग सोडा कहा जाता है। क्लियर। तो वाशिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3। ये कैसे प्राप्त होता है, जब सोडियम कार्बोनेट का रिक्रिस्टलाइजेशन होता है तो हमको क्या प्राप्त होता है, जो है वाशिंग सोडा प्राप्त होता है। तो NaHCO3 ये सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा, इससे Na2CO3 प्लस H2O CO2 निकलेगा। अब Na2CO3 को जब जो है इसमें वाटर का मॉलिक्यूल मिलेगा तो ये वाशिंग सोडा के रूप में क्या हो जाएगा, प्राप्त होगा। अब जो वाशिंग सोडा है उसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड इन ग्लास, सॉप एंड पेपर इंडस्ट्री, तो ग्लास इंडस्ट्रीज में इसका यूजेस होता है, सॉप इंडस्ट्रीज में और पेपर इंडस्ट्रीज में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इन द प्रोडक्शन ऑफ बोरेक्स, राइट, तो जो बोरेक्स होता है, राइट, Na2B4O7.10H2O, तो बोरेक्स के मैन्युफैक्चरिंग में भी किसका प्रयोग हो जाता है, वाशिंग सोडा का। देन जो हाउसेस होता है उनको क्लीन करने में भी इसका प्रयोग किया जाता है, और जो वाटर की परमानेंट हार्डनेस होती है उसको दूर करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, वाशिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, राइट। देन हो जाएगा कॉपर सल्फेट, राइट, कॉपर सल्फेट को तूतिया भी बोला जाता है, राइट, कॉपर सल्फेट इज आल्सो नोन एज तूतिया, एंड इसका जो केमिकल नेम है वो क्या हो जाएगा, कॉपर सल्फेट हो जाएगा, CuSO4। इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, ब्लू होता है, राइट। और जो कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हैव 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टल वाटर, राइट। तो जैसे अगर हम यहाँ पर देखें CuSO4.5H2O, तो CuSO4 प्लस 5H2 हो जाएगा। तो जो कॉपर सल्फेट होता है उसका कलर होता है ब्लू और इसमें 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्रिस्टल वाटर होते हैं। जब इसको गर्म किया जाता है, ऑन हीटिंग अ वाइट कलर सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय सेपरेटिंग द वाटर, तो जब कॉपर सल्फेट को हीट किया जाता है तो उससे जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो निकल जाता है और व्हाइट कलर का क्या प्राप्त होता है, व्हाइट कलर जो है साल्ट जो है प्राप्त होता है। फिर इसी से मिलता जुलता एक क्या हो जाएगा, जिप्सम हो जाएगा। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 2H2O। ध्यान रखना अंतर क्या है मैं वो बताना चाहूंगा कि जो कॉपर सल्फेट होता है इसमें यहाँ पर क्या होता है, CuSO4, राइट, तो CuSO4 कॉपर, और यहाँ पर क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट होता है। तो जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 2H2O, और जिप्सम का यूज़ किया जाता है सीमेंट इंडस्ट्री में। तो जिप्सम का केमिकल फॉर्मूला क्या हुआ, CaSO4.2H2O, एंड इट इज़ यूज्ड इन सीमेंट इंडस्ट्री। नाउ वी विल स्टडी प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए, व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 370 डिग्री और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जो जिप्सम है उसको जब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाता है तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को क्या कर देता है, छोड़ देता है, और हमको कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट जो है प्राप्त होता है, और उसको ही क्या कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, राइट। सो व्हेन जिप्सम इज हीटेड एट 373 केल्विन और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जब इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो है गर्म किया जाता है तो यह वाटर मॉलिक्यूल को क्या कर देगा, गिव अप कर देगा, और उससे कैल्शियम सल्फेट सेमी हाइड्रेट प्राप्त होगा CaSO4.H2O,
और जिसे ही क्या कहा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, या जिसको सिंपली क्या कहते हैं, पीओपी कहते हैं, राइट। अब आप देखना पीओपी की जो समस्या है वो हमारे देश में बनी हुई है। कारण क्या है, द पीओपी इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टॉयज, डेकोरेटिव आइटम्स। तो जो टॉयज हैं, डेकोरेटिव आइटम्स हैं, राइट, इनको बनाने में पीओपी का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ हमारे देश में जो मूर्तियां होती हैं, राइट, आइडल्स जो होती हैं, आइडल्स भी पीओपी की बनी होती हैं, और जब उनको जो पीओपी आइडल्स होती हैं, जब उनको किसी रिवर में क्या किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो वो वाटर को क्या करते हैं, पॉल्यूट करते हैं। देयरफॉर जो पीओपी है उसकी जगह पर जो सॉइल है, सॉइल से बने हुए टॉयज या डेकोरेटिव आइटम्स को जो है परचेज करना चाहिए। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है ये क्या होता है, वाइट पाउडर होता है, राइट। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ वाइट पाउडर, राइट। और जब इसमें वाटर को मिक्स किया जाता है तो ये कुछ ही समय पे जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है और ये सॉलिड सब्सटेंस में क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। इसीलिए इजीली इससे क्या बना सकते हैं, टॉय या डेकोरेटिव। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में वाटर को मिक्स किया जाता है, उससे डिफरेंट शेप के डेकोरेटिव आइटम या टॉयज बनाए जाते हैं, जो कि बाद में सॉलिड स्ट्रक्चर में जो है चेंज हो जाते हैं, राइट। इसका यूज़ कहाँ कहाँ पर किया जाता है, एक तो जो ब्रोकन बोन्स होती हैं उनको फिक्स करने में, भाई उनको फिक्स करके पाउडर को जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का पाउडर का छिड़काव किया जाता है और पट्टी को क्या कर दिया जाता है, तो उससे एक सॉलिड स्ट्रक्चर बन जाता है जिससे बोन क्या होती है, फिक्स हो जाती है, राइट। और दूसरा टॉयज, डेकोरेटिव आइटम्स में भी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। क्लियर। तो हम जो है सॉल्ट्स को भी बहुत अच्छे से यहाँ पर पढ़ चुके हैं, राइट। नाउ आवर नेक्स्ट लेक्चर इज पीएच वैल्यू, जो कि एसिड से, बेसिस से ही मिलता जुलता है, राइट। पीएच वैल्यू ये यहाँ पर कोष्टक है, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं पीएच वैल्यू है क्या। देखिए पीएच इज अ जो है न्यूमेरिकल मेजर है, या इसको हम क्या कह सकते हैं, स्केल कह सकते हैं। सो पीएच इज अ न्यूमेरिकल मेजर और स्केल दैट शोड एसिडिटी, राइट, एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ क्या हो जाएगा, सब्सटेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 मार्कर के लिए डेफिनेशन हो जाएगी, पीएच इज अ न्यूमेरिकल मेजर, राइट, pH is a numerical measure or scale that shows acidity or basicity of a particular solution, right। और इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, log, right, log inverse H plus ion, right। तो the pH value of solution is numerically equal to logarithm of inverse of the hydrogen ion और H plus ion। तो ये 2 डेफिनेशन जो है हम 3 मार्कर के लिए प्रयोग कर सकते हैं, राइट। सो पीएच वैल्यू इज अ न्यूमेरिकल मेजर और पीएच वैल्यू इज अ न्यूमेरिकल मेजर और स्केल दैट शोज द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन। द पीएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द logarithm ऑफ इनवर्स ऑफ द हाइड्रोजन आयन और H प्लस आयन। तो इसको हम जो है एग्जाम में इस तरीके से भी जो है राइट डाउन कर सकते हैं, राइट। पीएच वैल्यू इज इक्वल्स टू लॉग 1 अपॉन क्या हो जाएगा, H प्लस आयन, राइट। अब देखिए जो पीएच वैल्यू होती है वो 0 से लेकर 14 तक हो सकती है, राइट। और बाकी का आपको बहुत अच्छे से पता है, राइट। इफ और व्हेन द पीएच वैल्यू ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन 7 होगी तो जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक नेचर का होगा, राइट। इफ पीएच वैल्यू इज ग्रेटर देन 7 तो जो सॉल्यूशन है वो बेसिक नेचर का होगा, और यदि किसी सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू 7 है देन इट इज सेड टू बी अ न्यूट्रल सॉल्यूशन। क्लियर। नाउ वी विल स्टडी द पीएच स्केल। तो पीएच स्केल बात वही है, राइट। See, a scale has been developed to find the concentration of hydrogen ion present in a solution which is called a pH scale, right। तो ये यहाँ पर definition हो जाएगी, a scale has been developed to find the concentration of hydrogen ion, right, hydrogen ion present in a solution which is known as pH scale। और pH scale से जो है
किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ के बारे में जानकारी मिलती है। pH स्केल डिटरमाइंस द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेसिस इन द सॉल्यूशन। मान लीजिए वी हैव टू एसिड्स, राइट, ये भी एसिड है, ये भी एसिड है। अब इन दोनों एसिड में से किसकी एसिडिटी जो है ज़्यादा है, किसकी एसिडिटी कम है, ये हमको कहाँ से पता चलेगा? pH स्केल से ही पता चलेगा, क्योंकि pH स्केल ही जो है किसी भी सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन है उनके कंसंट्रेशन को जो है बताता है। सो अ स्केल हैज बीन डेवलप्ड टू फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन विच इज नोन एज pH स्केल। और pH स्केल से किसी भी सॉल्यूशन का एसिडिटी और बेसिसिटी की स्ट्रेंथ क्या है उसके बारे में हमको यहाँ पर जानकारी मिलती है। pH स्केल में जो P है वो पोटेंज, राइट, या पुंसास, पोटेंज या पुंसास को जो है रिप्रेजेंट करता है। और पोटेंज या पुंसास जो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब ही क्या होता है? पावर। मतलब pH स्केल किसी भी सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ के बारे में, पावर के बारे में बताता है, राइट। अब देखिए यहां पर जैसे मान लीजिए कि दो सॉल्यूशन है, एक ये हो जाएगा, एक ये सॉल्यूशन हो जाएगा, राइट। अब कुल मिलाकर यहां पर ये है कि इन डिफरेंट एसिड्स ऑफ द सेम कंसंट्रेशन, जैसे हमने यहां पर ये लिया कि कोई दो एसिड है, दो एसिड का कंसंट्रेशन क्या है? सेम है, राइट। तो दो एसिड का कंसंट्रेशन क्या है? सेम है। और जब उनको पानी में डिसॉल्व किया जाएगा तो जिसमें H प्लस आयन की संख्या क्या होगी? ज़्यादा होगी, वह स्ट्रॉन्गर एसिड होगा देन जो दूसरा वाला क्या हो जाएगा? एसिड हो जाएगा। तो यदि इफ वी हैव टू कंपेयर द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ टू सॉल्यूशन देन pH स्केल इज यूज्ड, राइट। और जब हम इक्वल कंसंट्रेशन का या तो एसिड्स लेंगे या बेसिक जो है बेसिस लेंगे, तो जब इक्वल कंसंट्रेशन के एसिड्स या बेसिस लेंगे, जब एसिड्स को वाटर में जो है डिसॉल्व किया जाएगा तो जिसमें H प्लस आयन की संख्या ज़्यादा होगी दैट वुड बी स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन दोज दैट प्रोड्यूस लेस आयन, राइट, वो क्या होगा? वीक एसिड होगा। अब यहाँ पर जो pH है उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है वो समझते हैं हम यहाँ पर। pH, तो इंपॉर्टेंस ऑफ pH वैल्यू, तो pH वैल्यू का इंपॉर्टेंस कहां पर हो जाएगा? एग्रीकल्चर में हो जाएगा। देखिए, विच सीड्स एंड विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजर शुड बी यूज्ड इन एग्रीकल्चर दैट कैन बी नोन अकॉर्डिंग टू pH वैल्यू, क्योंकि सॉइल की pH वैल्यू से ही डिपेंड होगा कि वहां पर कौन से सीड्स को जो है सोन करना चाहिए और कौन से फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि विदाउट नोइंग द एसिडिटी ऑफ द सॉइल इफ क्रॉप्स आर सोन देन देयर वुड बी अ चांसेस कि जो एग्रीकल्चरल यील्ड होगी या जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन होगा वो पर हेक्टेयर क्या होगा? कम होगा, राइट। तो इसीलिए आपने देखा होगा कि बिकॉज ऑफ द एक्सेस अमाउंट ऑफ यूजेज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स जो एसिडिटी ऑफ सॉइल है वो इंक्रीज हो रही है डे बाय डे। इसीलिए सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज लॉन्च सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, और इस सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम के माध्यम से ही सॉइल की एसिडिटी या बेसिसिटी के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है सो दैट फार्मर कुड कम टू नो which seeds and which fertilizers should be used in agriculture, right। तो पहला तो pH वैल्यू की जो इंपॉर्टेंस है वो कहाँ पर है? एग्रीकल्चर में है, राइट। थ्रू द pH वैल्यू वी कैन कम टू नो द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ द सॉइल, राइट। वंस वी हैव कम टू नो द एसिडिटी और बेसिसिटी ऑफ द सॉइल देन अकॉर्डिंग टू pH वैल्यू which seeds should be used, which fertilizers to be used can be determined, और उससे जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है उसको इंक्रीज किया जाता है, राइट। सो आफ्टर नोइंग द pH वैल्यू ऑफ सॉइल जो पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है दैट कैन बी इंक्रीज्ड, और सॉइल की जो फर्टिलिटी है दैट कैन आल्सो बी इंक्रीज्ड। सेकेंड क्या हो जाएगा? डाइजेशन हो जाएगा। देखिए हमारी बॉडी में क्या है? स्टोमक है, और हमारी स्टोमक में क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिनको जठर ग्रंथियां कहते हैं। उन्हीं गैस्ट्रिक ग्लैंड से या जठर ग्रंथियों से जो है
स्ट्रॉन्ग हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, रिलीज होता है। और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द डाइजेशन ऑफ आवर फूड, राइट। यदि हमारी बॉडी में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है रिलीज नहीं होगा तो फूड का डाइजेशन पॉसिबल नहीं है, राइट। सो सिंपली वी कैन से दैट द हाइड्रोक्लोरिक एसिड, right, hydrochloric acid is most important for the digestion of food in our stomach, but यहाँ पर जो HCl है जो जठर ग्रंथियों से निकलता है उसका भी एक फिक्स्ड रेशियो होता है। यदि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिलीज अ सर्टेन अमाउंट से ज़्यादा होगा तो यदि एक्सेस एसिड होगा तो वो एसिडिटी को क्या करता है, इंक्रीज करता है, राइट। तो एसिडिटी जब इंक्रीज होगी तो इससे उस स्टोमक जो है पेन होगा या बहुत ज़्यादा क्या होती है, जलन होती है। इट कॉजेज पेन, राइट, इट कॉजेज पेन, राइट। और इसका जो पेन है बहुत ज़्यादा होता है। तो यदि एसिडिटी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिलीज बहुत ज़्यादा होगा तो उससे स्टोमक पेन ज़्यादा बढ़ेगा और हो सकता है कि जो हमारी इंटेस्टाइन है उनमें अल्सर भी हो जाए। इसीलिए पीएच जो वैल्यू है, इसीलिए जो पीएच वैल्यू है वो डाइजेशन में भी क्या करती है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो पीएच वैल्यू से हम जो है एसिडिटी के बारे में जो है हम जान सकते हैं और इस तरीके से हमारे भोजन के डाइजेशन में जो है पीएच वैल्यू का इंपॉर्टेंट होता है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इंपॉर्टेंट होता है। और पीएच वैल्यू से जो है हम वी कैन कम टू नो द एसिडिटी ऑफ आवर स्टोमक एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं। नेक्स्ट इज tooth decay due to pH change. See, we consume different food items and we consume different liquids, right? और हर एक फूड आइटम्स का और हर एक लिक्विड का pH वैल्यू जो होती है क्या होती है, अलग अलग होती है, राइट। और इस pH वैल्यू चेंज होने की वजह से ही इफ द फूड आइटम जो है अगर हमारे दांतों में फंस जाता है तो उसकी वजह से दांतों का डिके होना प्रारंभ हो जाता है, राइट। क्यों? द टूथ इनेमल इज मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, राइट, which is insoluble in water. The enamel, right, tooth enamel is made up of calcium phosphate which is insoluble in water, जो कि वाटर में क्या होता है, सोल्यूबल नहीं होता है। और ये डिपेंड करता है पीएच वैल्यू पर, right? If this enamel becomes corrosive when the pH value of mouth is less than 5, right? तो यदि हम ऐसा कोई फूड कंज्यूम करते हैं, लिक्विड कंज्यूम करते हैं जिसकी वजह से यदि हमारी माउथ की pH वैल्यू 5.5 हो जाती है, राइट, तो उससे जो एनेमल है वो क्या हो जाता है, कोरोसिव हो जाता है और उसी की वजह से हमारे जो टूथ हैं वो डिके होना प्रारंभ हो जाते हैं। उसका कारण क्या रहता है कि देखिए, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ ब्रेक डाउन द फूड एंड प्रोड्यूसेस एसिड। तो जो हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया रहता है वो फूड को ब्रेक डाउन करता है और एसिड को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से माउथ का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाती है और इसी की वजह से टूथ डिके होना प्रारंभ हो जाते हैं, राइट। और यदि इसको रोकना है सो वी रेगुलरली ब्रश 2 times, राइट, आफ्टर ईटिंग द फूड वी शुड ब्रश ट्वाइस, राइट। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें जो है ब्रश करना चाहिए, उससे जो है टूथ का जो है डिके रुक सकता है। फोर्थ क्या हो जाएगा, एसिड रेन हो जाएगा। देखिए, बिकॉज ऑफ द पॉल्यूशन देयर आर मैनी गैसियस ऑक्साइड्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, राइट। तो जो गैसियस ऑक्साइड्स होते हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। जब कभी भी प्रेसिपिटेशन या रेनफॉल होता है तो उस समय पे ये गैसियस जो ऑक्साइड है, दीज गैसियस ऑक्साइड्स रिएक्ट विद रेन ड्रॉप्स, राइट। और जब ये रेन ड्रॉप्स के साथ में रिएक्ट करते हैं तो उससे क्या होता है, एसिड्स फॉर्म होता है। एंड व्हेन दिस एसिड्स कम विद रेन ड्रॉप्स टू द अर्थ तो उसको ही क्या कहा जाता है, एसिड रेन कहा जाता है, राइट। तो एसिड रेन का कारण क्या है, कारण समझते हैं सबसे पहले। देखिए, कारण ये है कि देयर आर डिफरेंट गैसियस ऑक्साइड्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, राइट। और
ये जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ता है वैसे वैसे ये ऑक्साइड्स भी हमारे पॉल्यूशन या हमारे जो एटमॉस्फेयर है उसमें इंक्रीज होते जा रहे हैं, राइट। जब रेन वाटर जो है, व्हेन these oxides come in contact with the rain water, तो ये एसिड्स को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं, एंड व्हेन दिस एसिड्स फॉल ऑन द अर्थ विद द रेन ड्रॉप्स देन दिस इज नोन एज एसिड रेन। नॉर्मली अगर आप देखें तो रेन वाटर का जो pH वैल्यू होता है वो कितना होता है, 5.6 होता है, बट इफ द pH वैल्यू ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 5.0 देन इट इज नोन एज एसिड रेन, राइट। अब देखिए जैसे वायुमंडल में क्या है, CO2 है और H2 है, रेन ड्रॉप्स हो जाएंगी तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड बनेगा और सल्फ्यूरिक एसिड SO4 H2O, तो H2SO4 बनता है जो कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है। और वी हैव स्टडीड दैट सल्फ्यूरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो जब ये एसिड रेन अर्थ पर आती है तो उससे सबसे पहले तो क्या होता है कि जो बिल्डिंग्स होती हैं, जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं, वो क्या होती हैं, उनकी जो है शाइनिंग चली जाती है, क्योंकि एसिड रेन, तो जब ये एसिड रेन होती है जो कि क्या होती है, कोरोसिव होती है, उस वजह से शाइनिंग ऑफ द बिल्डिंग, और स्पेशली जो हिस्टोरिकल बिल्डिंग होती है जैसे ताजमहल होती हैं, उनकी शाइनिंग क्या होती है, चली जाती है, राइट। तो हम कह सकते हैं कि जो है हिस्टोरिकल बिल्डिंग पर नेगेटिव इफेक्ट होता है, बिल्डिंग्स पर इसका नेगेटिव इफेक्ट होता है, साथ ही साथ जो इकोसिस्टम होता है दैट इज आल्सो इफेक्टेड। व्हाई? क्योंकि जो एसिड रेन होती है, जब एसिड रेन जो है वाटर बॉडीज में जाकर मिलती है तो उससे जो वाटर बॉडीज हो जाती हैं वो एसिडिक हो जाती हैं और उससे प्लांट और जो एनिमल्स हैं वो भी क्या होते हैं, नेगेटिवली इम्पैक्ट होता है उन पर, राइट। साथ ही साथ जो एक्सेसिव रेनफॉल है, एक्सेसिव रेनफॉल न्यूट्रलाइजेस द एल्काली प्रेजेंट इन द सॉइल, और उसकी वजह से जो सॉइल है वो एसिडिक हो जाती है और एसिडिक होने से जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो लूज होती है, राइट। सो इन दिस वे वी हैव स्टडीड द इंपॉर्टेंस ऑफ pH वैल्यू, राइट। सो वी हैव स्टडीड, राइट, वी हैव स्टडीड एसिड्स, we have studied acids, bases, then in this lecture we have studied salts as well as we have studied pH value in depth. So in this way we have finished this topic. In the next lecture we will meet with new topic. Till then, thank you.